So yes, good morning and welcome to IFACE. Welcome everyone. अब देख सकते हो एज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि आज का टॉपिक भी हो जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि व्हाट एवर आई वांट टू कन्वे, जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ कल और आज दोनों को मिलाकर टोटल कंप्लीशन होगा। सीएसआई नेट में डेटा इंटरप्रिटेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बार बार बताया आपको, मेनली 4 टाइप का होता है आपका। पाई चार्ट्स, उसके बाद बार डायग्राम, उसके बाद लाइन ग्राफ या फिर टेबल। इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो मैथमेटिकल होता है। वहाँ पे परसेंटेज एंड फ्रैक्शन का यूज, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, रेशियो का भी यूज होता है। उसके अलावा अब जब दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, आज उसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट्स। किसी ग्राफ से, किसी पिक्चर से आपको एक साइंटिफिक रीजनिंग करना हो, तो whatever this is trying to tell you, right? तो ग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। ग्राफ का जो आइडिया है, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में प्लॉट करके उसमें इंटर रिलेशनशिप, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको समझना, और उसके ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं आपका सीएसआई में। एनीवे, we'll start our today's class, but before that I'd like to take your doubt. Before that, I'd like to take your doubts. If you have any doubts, do not hesitate. Please ask me here. So yes, students, I hope you people can hear me. Just write down in the comment section. I cannot see anybody's comment yet. So, okay, Anshu, yeah. Anshu sent a message. These are just message from tomorrow. If you can see chat box, nothing but another batch. Pallavi, good morning. Priyanka, good morning. चलिए, so ask me questions, students. If you have questions, ask. Good morning, Rooney. Good morning, Bhabika. Once again, welcome everybody. Now, so tell me the questions where you have a doubt, and then I'll move to the topic, that is data interpretation 2. So, right. Good morning, Nirasha. Okay, I think everything is well and good. I hope you have tried to solve the questions of data interpretation. आपका अगर डीपीपी आप देखोगे, वहां पे भी सोचने वाला क्वेश्चंस था, जो आप सॉल्व, यू अंडरस्टूड, राइट? Okay, great. If you don't have any questions, let us start our today's class, that is data interpretation 2. Of course, here we are going to face some problems. The problems are based on basic ideas, okay? So you need to understand the idea and you need to tell me the answer. So let us see the question. The first question is pretty easy. We have solved questions like this. Students, in data interpretation, most of the questions we are solving, these are previous year's questions. You will have you will have an idea, you will have an idea about the level of questions which is coming in CSI and NET. Okay, so बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? What about this question? So this was the last question of yesterday's slide, but we have not solved this yesterday, right? So tell me now and try everybody. The distribution of grades secured by students in a class is given in the table below. What is the least possible population of the class? 4 options are given below. That is 2, 4, 8 and 10. These 4 options. Now grade, आप देख सकते हो fraction of population.
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना पोर्शन उस ग्रेड में है। ग्रेड ए में 0.1 दैट इज 1/10, बी में 4/10 that is 0.4, C there will be 0.3 that is 3/10 and D 2/10 0.2। तो लीस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन क्या हो सकता है क्लास में, बताइए। So tell me students, what should be the answer of this? Think about it. Bhavika Mehta said 10. Bhavika Mehta said 10. I need everybody's participation. Abhijit Shahu, Vijay Pal, Nirasha Kamble, very good. Very, very good. I need everybody's participation, so please try to think. I know. Please try to think. Only 4 answers. What about other people? Joe Smith, Bharti, what about you? हरमनप्रीत कौर, आपका कैसा आंसर क्या होगा? आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, तो बताइए इसका आंसर क्या है। मेघा, व्हाट अबाउट यू? पल्लवी, तनया, बताइए। यस प्रियंका, व्हाट इज योर आंसर? 10, वेरी गुड। हरमनप्रीत कौर, चलिए लेट अस लिसन फ्रॉम भाविका, उसका थॉट प्रोसेस क्या था। भाविका बताइए आप कैसे सोचा इसके बारे में। गुड मॉर्निंग भाविका। Very good. First, person should be in whole number, right? Person should be in whole number. It should not be in fraction. You cannot say half person is there. You cannot say 0.2 persons are there. You need to tell 1, 2, 3, 4 like this. What Bhavika is saying that 0.1 that means 1/10, मान लीजिए total population 2 है, तो 1/10 of 2 is a fraction. It's a fraction. It's not a whole number, not a natural number. So what will happen? This should not be the correct answer. अगर 4 ले लेते हो स्टूडेंट, देखो 4 के लिए भी पहला ऑप्शन से ही हो जाएगा। 4/10 भी एक फ्रैक्शन ही होगा, 8/10 भी एक फ्रैक्शन ही होगा। कोई भी नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो फ्रैक्शन के साथ, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है 2, 4 एंड 8, ये तीनों ऑप्शन जो नंबर्स देता है ग्रेड ए का स्टूडेंट, ग्रेड बी का स्टूडेंट, ग्रेड सी का स्टूडेंट, ग्रेड डी का स्टूडेंट, those are coming in fraction, but number cannot be in fraction in such sense. So answer will be 10. But why 10? If it is 20, still it will work, right? 1/10 into 20, देखिए 2 हो रहा है। 4/10 into 20, यानी कि देखो क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। So basically, if it will be 10, 20, 30, 40, any multiple of 10, it will work. But यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट लीस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन, तो आंसर बन जाएगा 10। ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग हो सकता था if they will create zero, if they put zeros like this, okay, 10, 20, 40, 80, 10. Now all the fraction will be converted to numbers, but the least of them will be 10, of course. Got it? I hope you got it, right? Very, very good. Very good Pooja, very good Harmanpreet. ठीक है, तो ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता था अगर दे विल पुट हियर 20, 40, 80, 10, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी मोर ब्यूटीफुल अगर यहाँ पे पॉइंट जो है ऐसे नहीं करके कोई फ्रैक्शन में हो जाए। मान लीजिए 3/4, 2/3 ऐसे फ्रैक्शन हो जाए,
और यहाँ पे जो नंबर्स रहे लाइक 15, 35 ऐसा कुछ नंबर्स रहे जो इस फ्रैक्शनों से मल्टीप्लाई करने से होल नंबर देते। So these question can be asked in a very different way, but the idea is very important. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा हर वक्त याद रखना, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ चॉकलेट्स मान लीजिए, एनी नंबर ऑफ थिंग वेर यू काउंट थिंग्स, इट शुड बी नेचुरल नंबर। ओके, so anyways, I hope you got it. Let's move to the next question. Let's try next question. Now this is the question where the today's class starts. क्योंकि आज का क्लास का जो मेन टारगेट है टू अंडरस्टैंड दिस एनालिटिकल क्वेश्चन, जहां पे नॉट सो मेनी मैथमेटिकल डेटा बट थ्रू ए रीजनिंग यूनिट टू सॉल्व इट। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। देखिए भाविका ने बताया 3, बहुत जल्दी से भाविका ने बताया, आप लोग सोचिए, सोचना इंपॉर्टेंट है, टाइम लेकर सोचिए। आई एम गिविंग यू टाइम, टाइम लेकर सोचिए। एक्स के साथ टाइम का क्या रिलेशन है, वेयर x is the distance from the nest of a bird. A bird is it's a very beautiful scenario. A bird is going to find foods and everything from her nest or his nest. Now that bird, उसका जो distance है from the nest represented by the variable x. It's a moving thing, so the distance will keep varying. Okay. So that thing, here which graph will represent, okay, properly the scenario. Pooja is again saying 3. Question is which of the following plots cannot be right? यहाँ पे तीनों पॉसिबल हो सकता है, एक पॉसिबल कभी नहीं हो सकता है। रूनी ने बताया टाइम ट्रैवल टू पास्ट। रूनी क्या है, आप क्या सोच रहे हो? ये कैनॉट टाइम ट्रैवल टू पास्ट। रूनी पास्ट के बारे में बात नहीं हो रहा है डिस्टेंस के बारे में। आप थोड़ा समझो बातों को, आप थोड़ा इमेजिन कर लिया, दैट इज अ वेरी गुड पार्ट इन साइंस। बट यहाँ पे एक्स जो है इट्स टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, नॉट पास्ट एंड फ्यूचर। द टाइम, एज द टाइम विल गो इट विल कवर द डिस्टेंस। आपका लॉजिक थोड़ा सा सही हो आप, लेकिन थोड़ा और सोचिए लॉजिक के बारे में। ओके, पूजा बता रहा है रीजनिंग। ओके, आई आस्क वन बाय वन, बट लेट अदर थिंग। मेघा ने बताया 4। ओके, हेलो मेघा। तो फर्स्ट यूनिक आंसर हियर फ्रॉम मेघा। तो लेट अस लिसन, मेघा ने क्या सोचा। मेघा आपने क्या सोचा? ओके मेघा, तो दैट्स वेरी गुड, आपने सोचा इसीलिए मैंने आपको आस्क किया। जिनका डायरेक्ट आंसर आ गया वो तो सही है, एकदम बताएगा कि ये आंसर क्यों सही नहीं है। अब मुझे एक एक करके बताइए, पहला नंबर जो ऑप्शन है का जो ग्राफ है उसका एनालिसिस करके क्या पता चलता? ये है टाइम, ये है एक्स मतलब डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो प्लॉट कर रहे हो आप डिस्टेंस। बताइए मेघा इसका मीनिंग क्या है पहला ग्राफ का? Just tell me in that term distance and time. टाइम जब 0 पे था वो नेक्स्ट पे था, तो डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट 0 था। एज द टाइम इज इंक्रीजिंग क्या हो रहा है? हेलो, देखिए बट ये तो यहाँ पे भी हो रहा था, ये ग्राफ जो यहाँ पे लीनियर है, मतलब ऐसा गया है। आपने जो बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात बताया, और बहुत ही आप देख सकते हो लीनियर गया है, एक लाइन है, ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में क्या ख्याल? भाविका ने बताया, देखिए एक बात, कांस्टेंट। तो भाविका तो बता ही रहे हो। मेघा थैंक यू सो मच। पूजा, इफ यू कैन इंटरेक्ट, पूजा रानी। पूजा, हाँ, गुड मॉर्निंग पूजा। तो व्हाट वी विल डू टुगेदर, एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, आप उसको लॉजिकली आंसर दें।
ऑप्शन नंबर 1, व्हाट डज इट एम्फसाइज, क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा है बर्ड, राइट? हाँ, और जितना दूर मतलब जितना टाइम जाएगा वो दूर जाता रहेगा, राइट? तो दिस इज द ऑप्शन 1। तो वो पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, एक बर्ड लॉन्ग ट्रैवल पे है, लॉन्ग, इसको क्या बताया गया? लॉन्ग फ्लाई। हम बोलते हैं लॉन्ग ड्राइव, वो बताएगा लॉन्ग फ्लाई। अब दूसरा ऑप्शन को क्या बताओगे? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन। देखो, यहाँ पे बाढ़ जा रहा था, यानी कि डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस ऊपर पे जाता है। मान लीजिए ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, सो दिस आर द रेंज। तो बाढ़ जा रहा है, जाते जाते एक डिस्टेंस तक गया। अब मान लीजिए शाम हो गया, वो लौट रहा है, लौटते लौटते वो फिर से घर के करीब आ, घर पे नहीं पहुंचा अभी तक, ठीक है, उधर आके घूम रहा है। एनीवे, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, राइट? अब पूजा ने जो बताया, मान लीजिए यहाँ पे एक टाइम है, टाइम मान लीजिए ये क्या लेता हूँ, 1 आवर 20 मिनट। बर्ड्स ने 1 आवर 20 मिनट्स तक ट्रैवल किया। अब 1 आवर 20 मिनट्स रिप्रेजेंटिंग टू डिस्टेंसेस, राइट? यहाँ, सॉरी पूजा, राइट पूजा? पूजा ने क्या बताया, देखो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे दो डिस्टेंस हो रहा है। इट्स अ मैजिकल बर्ड, नॉट पॉसिबल। पूजा ने इसीलिए बताया कि एज द गिवन टाइम बर्ड कैन नॉट बी एट टू पोजीशन। बहुत अच्छा सेंटेंस बताया, एट सिंगल टाइम एक ही बर्ड दो पोजीशन पे नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल, वेरी वेरी गुड, दिस इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, वेरी गुड। उसके बाद पूजा लास्ट ऑप्शन 4। तो बहुत अच्छा, तो ये और ये ग्राफ का सिनेरियो थोड़ा बहुत सेम है, राइट? लेकिन डिफरेंस क्या है? ये देखिए ऐसा गया और ये ऐसा गया, दोनों में क्या डिफरेंस? नहीं, वो तो सिमिलर वे पे, यहाँ पे भी वही हुआ, सिमिलर पे गया, सिमिलर पे वापस। आप इसको देखिए, इस लेफ्ट साइड को देखिए, लेफ्ट साइड को देखिए, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, इन दोनों में क्या डिफरेंस? कौन बता पाएगा? क्या? तो क्या लगता है, दोनों में ही क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ा? लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है? कौन सा? इसमें और दिस? श्योर? अच्छा आप सोचिए, आप कोई माउंटेन पे जा रहे हो, है ना? माउंटेन से स्पीड डिक्रीज हो रही है वाइल रिटर्न। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख सकते हो, इसका जो चढ़ाई है ये बहुत शार्प है, ये सन नो पूजा, ये बहुत ही शार्प है, और ये थोड़ा सा फ्लैट है। जब भी किसी शार्प होता है, इसका मतलब बहुत चेंजेस जो है बहुत फास्ट हो रहा है, दिस इज फास्ट चेंजिंग, ठीक है? इसका जो चेंज हो रहा है, क्यों मैं इतना बात बता रहा हूं, क्योंकि यही सेंस आपको काम पे लगेगा एग्जाम। ये बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, टाइम गैप अब अगर आप देखोगे, इस टाइम गैप में बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया। देखो ये अगर जितना चराई ज्यादा होगा, इतना टाइम गैप में इतना हो जाएगा, और जितना चराई फ्लैट होगा कम होगा, राइट? तो डिस्टेंस का चेंज टाइम के साथ अगर ज्यादा होता है तो ये ऐसे शार्प होता है, और अगर फ्लैट हो जाता है इसका मतलब डिस्टेंस के साथ का जो चराई है अब वो स्लोली होगा, ठीक है?
एनीवे, आई होप यू गॉट दिस आइडिया। पूजा एकदम कंप्लीट करेक्ट है। पूजा हैज सेड दैट ऑप्शन 3 इज द आंसर व्हिच कैनॉट बी राइट। ऑप्शन 3 इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन 3 इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 is very very good Pooja. Very good Vinaya, very good Sara, very good Abhijit. Megha, I hope you got it. Very good Vijaya Pal, very good Nirasha, very good Babika. चलिए, तो लेट अस सी अदर क्वेश्चन। देखो, ये भी एक क्वेश्चन है जहां पे सिनेरियो समझकर आपको ग्राफ ड्रॉ करना, बताइए। और ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी कि सीएसआई नेट में आ चुका है, क्या ना, बताइए। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का क्वेश्चन में जब तक क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा मैथ जैसा, तो वी विल गेट टाइम। उसी टाइम पे आप अच्छे से सोचना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन। अगर कंसेप्ट में कोई मुश्किल है, प्लीज आस्क मी, बिकॉज टुडे वी हैव टाइम। ज्यादा टाइम तक क्लास नहीं हो, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट दोस थिंग जहाँ पे मैथ कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, सिर्फ एनालिसिस करना। So please think about all and every options properly. If you have any doubts, just ask me now. क्योंकि ये क्वेश्चंस आप देखोगे लास्ट 5 years में भी बहुत बार आ चुके हैं, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। Three circles of equal diameters are placed such that their centers make an equilateral triangle as in the figure. ठीक है, अब देखो हर एक सर्कल में कुछ स्कैटर्स, रैंडमली स्कैटर्स पॉइंट्स है, 50 पॉइंट्स। नाउ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ पॉइंट, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, चाहे वो एक सर्कल में हो या एक पॉइंट इस सर्कल का हो, दूसरा पॉइंट वो सर्कल का हो, ऐसा कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो, डिस्टेंस और डेंसिटी, डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी जो भी बताओ आप, तो ये डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मतलब कितना ज्यादा है क्वेश्चन, आप डेंसिटी भी बता सकते हो। बताइए, क्या हो जाएगा इसका? भाविका ने बताया 2। रुन ने बताया 3। ऑल 3 फॉलो इक्वल डिस्टेंस। लेट अस सी, क्वेश्चन को समझना है स्टूडेंट्स। कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स रूनी, यहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आप ले लेते हो, तो ये पेयर ऑफ पॉइंट्स आपको मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट, क्या होगा? अबाउट इट, अच्छे से सोचना। भाविका, आई मस्ट से, देखिए आप अच्छे कर रहे हो, बट आप टाइम लो, है ना। लॉजिकली हर एक क्वेश्चन को सोच कर करो। अभी जल्दी करना नहीं है, एग्जाम में जल्दी करना है। अभी धीरज से चीज को अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, नहीं तो गोल्ड ने बताया 4। वेरी गुड गोल्ड, यू आर थिंक। सर एग्जैक्टली हमको क्या ढूंढना है अभिजीत? क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट जो लाइन है इट्स नथिंग, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हाँ,
एक चीज अच्छा है उसके बारे में, वो बोलता है इसके साथ इसका जो डिस्टेंस है, इसके साथ इसका डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस, और इसके साथ इसका डिस्टेंस भी यूनिफॉर्म। तो आपको क्या ढूंढना है, एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट का जब डिस्टेंस आप मेजर करते हो तो डेंसिटी क्या बन जाता है, पॉइंट्स का डेंसिटी 50 50 50, टोटल 150 पॉइंट के बारे में अगर आप सोचोगे, तो अगर कोई भी पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस कम होने से डेंसिटी क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होने से डेंसिटी क्या होगा, इसके बारे में आपको समझ, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। Frequency distribution of distances between all possible pair of points। सही है। Mayushika said two, frequency distribution of distances ऐसा ने बताया सर एक बार, मैं नहीं समझाऊंगा, लेटेस्ट की भविका ने क्या समझा। ठीक है, भाभी का इतना जल्दी आंसर, सेकेंड ही लग रहा है। भाभी का आप क्वेश्चन का क्या मतलब किया बताइए। हाँ, फ्रीक्वेंसी मतलब किसका फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन का मीनिंग बताइए। सिंपल लैंग्वेज पे बताइए ना, यहाँ पे दो चीज बताया गया है। फ्रीक्वेंसी, लास्ट लाइन अगर आप देखोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट। उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना है। आप लोगों को कम कम बहुत मतलब स्टैटिस्टिक्स सबको आता है। अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल, अगर डिस्टेंस को एक फंक्शन समझते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो, इसका रेडियस अब मान लीजिए कुछ है, कुछ मान लीजिए आर, ठीक है। तो आर अगर डिस्टेंस जो है ये लेस देन आर है, तो मान लीजिए ऐसा मैं बताऊं कि आर से अगर छोटा है, डी एक्स वाई अगर आर से छोटा है, डी एक्स वाई अगर आर से छोटा है, तो क्या होता है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या बताओगे आप, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट। ठीक है, मैं सिंपली सोचा था, लेकिन आप लोग बता रहे हो, फिर मैं थोड़ा और मतलब डिफरेंट वे पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो देखिए अगर आर से छोटा है उसमें 2 पॉइंट्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा हो रहा है, राइट। उसके बाद अगर देखो यहाँ पे ये 50 जो है, मान लीजिए 50 नहीं, इसका जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में जाकर, सॉरी, देखिए स्टूडेंट मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट। तो ये बात समझना है, यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में फ्रीक्वेंसी नहीं बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंसेस का फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लीजिए डिस्टेंस के बारे में आप सोचोगे, अगर छोटा डिस्टेंस है तो देखो उसमें एक, मान लीजिए एक पॉइंट ले लो, आप एक पॉइंट ले लो, पेयर ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात हो रहा है, तो उससे दो जो दूसरा पॉइंट है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस का गैप तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि इससे बाहर आके ही दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से जाने तक, मतलब एकदम शुरू पे फ्रीक्वेंसी जीरो ही था, इसीलिए देखो हर पिक्चर में जीरो से स्टार्ट हुआ, डिस्टेंस अगर जीरो है फ्रीक्वेंसी जीरो होना चाहिए, राइट, जीरो है। उसके बाद आफ्टर फ्यू टाइम्स फ्रीक्वेंसी जो है आपको मिलने लगा, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक dxy अगर लेस देन आर समझ लेते हो, उस तक एक पीक ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ है। पीक ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब वो डिस्टेंस बार बार आया है, वो डिस्टेंस बार बार आया है बिटवीन दोस टू पॉइंट। फिर से सोचिए, एक डिस्टेंस मान लीजिए ये भी एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये भी एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये भी एक कांस्टेंट, उस डिस्टेंस के मान लीजिए कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सर्कल, तो ये सेम है। तो ये आर वाला डिस्टेंस अगर हो जाता है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, डिस्टेंसेस का फ्रीक्वेंसीज आपको ढूंढना है, तो ये आर वाला डिस्टेंस अगर हो जाता है उसके लिए भी एक पीक आ जाएगा। देखो इस पर्टिकुलर आर डिस्टेंस के लिए यहाँ पे एक पीक आएगा, मतलब कोई भी यहाँ से एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, तो बहुत सारा आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जिसका डिस्टेंस आर के करीब हो रहा है। तो एक आर का वैल्यू है, मतलब ये एक फिक्स डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस में जाके फिर से फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, राइट। एंड उसके बाद फिर से आप देखो इसके बीच में, ये कैपिटल आर के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो बन जाएगा फिर से। एंड आर के ऊपर अगर चला जाओगे, मतलब और भी दूर तक चला जाओगे, तो उस डिस्टेंस का भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, यू आर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टेंसेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टेंसेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टेंसेस का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो कितने बार आया है, मान लीजिए 156 टाइम्स आया है, तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी इसमें है 156 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए 10 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस है, उसका फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कोई भी 10 सेंटीमीटर में दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन जितना मिलेगा वो उसका फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आर है, आर यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल आर में आप देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी हो सकता है, मतलब कैपिटल आर डिस्टेंस में आप बहुत सारा पेयर आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाएगा, जहां पे आपका फिर से होने का चांसेस, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए। अगर स्मॉल आर से छोटा डिस्टेंस लेते हो, मान लीजिए एक छोटा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ले लीजिए, देखिए ये डिस्टेंस में भी बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस को फिक्स करके उसका फ्रीक्वेंसी आपको समझ, क्वेश्चन समझ में आया, ये और नो, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। डिस्टेंसेस का फ्रीक्वेंसी मतलब 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितना फ्रीक्वेंसी है ऐसा पेयर्स का जिसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस ले लो, इसमें देखो ये दो पेयर्स आ गया, यहाँ से दो पेयर्स आ गया, यहाँ से दो पेयर्स आ गया, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ये वाला डिस्टेंस। सिमिलरली मान लीजिए कैपिटल 8 सेंटीमीटर ले लो, कैपिटल 8, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में भी बहुत फ्रीक्वेंसी आ गई। निराशा ने बताया नो सर। वेट अ मिनट, देखो 3 पिक्चर्स है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 पिक्चर्स है, 1 सर्कल इज देयर,
आपको समझाने के टाइम पे मेरे लिए और भी क्लियर हो गया, तो आई एम क्वाइट श्योर आपको भी क्लियर होना चाहिए। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए तो ये है तीनों सर्कल्स। मान लीजिए इनके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस, क्योंकि इक्विलैटरल है, ठीक है ना, इक्विलैटरल। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो सर्कल्स है, ये सर्कल्स है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल, सारे सर्कल्स 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में बहुत सारा डॉट्स है। डॉट्स कैसा है, यहाँ पे डॉट्स है 50 डॉट्स, ठीक है। ऐसे करके डॉट। अब देखिए ये स्टैट्स का थोड़ा सा एप्लीकेशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये लैंग्वेज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ पॉइंट। So they are not saying frequency distribution of the points. No, they are talking about frequency distribution of distances. कोई भी पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस ले लेते हो, एक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना पेयर ऑफ पॉइंट्स आपको। अब मान लीजिए ये जो पिक्चर आ गया, इसमें मैं पर्टिकुलर एक डिस्टेंस बता रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर टी बिटवीन एक्स वाई, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में। मान लीजिए मैं बता रहा हूं 1 सेंटीमीटर, सॉरी टी एक्स वाई 1 सेंटीमीटर कब आएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये 2 सेंटीमीटर है, इसका हाफ 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 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 यहाँ पे भी देखिए 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है, इसका अच्छा एक फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए ये 15 टाइम्स आ रहा है। आप देख सकते हो इसका 15 टाइम्स ये फ्रीक्वेंट। कैसे काउंट करोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 15 14 15। समझ में आया कि नहीं आया। निराशा, निराशा अनम्यूट योरसेल्फ, बात करके पढ़ाने में अच्छा लगता है। निराशा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैं बता रहा हूँ कि इसको डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी आपको बताने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये 3 सर्कल्स है निराशा, हर एक सर्कल्स का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके निराशा। अब देखिए मान लीजिए मैं अगर बताऊंगा 1 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वाला कितना पेयर्स है, तो आप काउंट करोगे। अच्छा ये 2 पेयर्स 1 सेंटीमीटर दूरी पे है, ये 2 पेयर्स 1 सेंटीमीटर दूरी पे है, ये 2 पेयर्स 1 सेंटीमीटर दूरी पे है, ये 2 पेयर्स 1 सेंटीमीटर। यस और नो। तो उसको ही हम बताते हैं फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है। डन। अगर 0 सेंटीमीटर बताऊं तो देखो ये 0 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। पेयर्स ऐसा नहीं मिलेगा आपको, एक पॉइंट है उससे 0 सेंटीमीटर में और कोई पॉइंट ही मिलेगा, राइट। उसके बाद देखिए निराशा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या बताया मैंने 10 सेंटीमीटर, मैं आपको बताता हूँ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बताता हूँ। तो देखो यहां से लेकर 6 सेंटीमीटर यहां तक होगा, मानिए यहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा। तो 6 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है, इसमें भी देखिए कोई नहीं रहेगा। 6 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है, यहां पर भी कोई नहीं रहेगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी 0 बन जाएगा। यस यू गॉट इट निराशा। अब देखिए अगर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बारे में मैं सोचूंगा कि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो देखिए बहुत सारा पेयर्स मिलेगा। पहला पेयर्स तो ये वाला है, यहां से लेकर इसका सेंटर, यहां से लेकर 3 पेयर्स तो यहां पर ही मिल गया। उसके बाद मानिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऐसे करके उधर पे भी 18, मतलब यहां से भी ज्यादा मिलेगा। क्योंकि देखिए पहले जितना पॉइंट्स था वो एक सर्किल, 1 सर्किल का था, ठीक है, 1 सर्किल का था, 1 सर्किल का था, इसका भी था, इसका भी था, इन तीनों का था, मतलब इसका भी था, इसका भी था, इसका भी था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस और भी ज्यादा हो जाएगा, इसका 50, इसका 50, इसका 50, इसके बीच में भी आप इंटरलिंक कर सकोगे।
मतलब ये वाला सर्कल इसका 50 के साथ भी रिएक्ट मतलब एक्ट करेगा, इसका 50 के साथ भी एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो है और भी ज्यादा हो जाएगा, इसमें ऐसा पेयर्स और भी ज्यादा आएगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से देखना, इसका आंसर 3 बन जाएगा। इसीलिए देखो पहले जीरो पे, मतलब जब 0 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, 0 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, तब फ्रीक्वेंसी था 0, यानी कि एकदम 0 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आर इक्वल टू मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस में, छोटा एक डिस्टेंस में पीक हुआ था। उसके बाद उसके बीच वाला पोर्शन में, मतलब ये रीजियन, ये रीजियन, ये रीजियन, ये रीजियन, ये रीजियन, ये वाला रीजियन पे आप देखो फिर से 0 बन गया, क्योंकि वहां पे कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से पीक हुआ, और ये पीक इससे थोड़ा सा ऊपर है। कितना प्रिसाइज पिक्चर है आप देखो, ये वाला पीक इससे थोड़ा सा ऊपर पे है, यानी कि फिर से नंबर ऑफ पेयर्स बढ़ना शुरू हुआ जब आप 10 सेंटीमीटर रेडियस में, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जा चुके हो, 9 टू 10 सेंटीमीटर, ये वाला जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में फिर से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू होगा, एंड दिस पीक will be bigger than, this peak will be bigger than the previous one. Then again you can see the fall once you get into 15 centimeter wala distance. To cross that distance range, again the whole things, the frequencies will get down to 6. So this is the idea. इतना डीप आइडिया है, सोच भाभी का आपने सोचा था, भाभी का लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग ही तो वही नहीं है। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉइंट्स नहीं बताया गया है, डेंसिटी ऑफ द पॉइंट्स नहीं बताया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स आता है, आई होप आप लोग स्टैटिस्टिक्स कर चुके हो, तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो डिस्टेंस आता है उसका फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना है। तो ये रैंडम वेरिएबल बन जाएगा अगर, तो मान ही सकते हो, मान लीजिए डिस्टेंस रैंडम वेरिएबल है तो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इस रैंडम वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लीजिए 50 पॉइंट्स है, उनमें से 1 सेंटीमीटर वाला आपको मिल गया 24 पेयर्स, ठीक है। कितना पेयर्स मिलने वाला है, डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ पॉइंट्स विल लुक एट। समझ में आया? तो डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट्स, ये जो नंबर है दैट विल बी योर वेरिएबल, उसके ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना वेरिएबल्स ऑफ, कितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना फ्रीक्वेंसी है ऐसा पॉइंट्स का। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आप निकाल रहे हो, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसा बात। डू नॉट एग्री विथ एनी रीजनिंग। अगर ऑनलाइन पे भी मैंने देखा बहुत सारी जगह है जहाँ पे रीजनिंग दिया गया है कि ये आंसर होगा, डू नॉट लिसन टू दैट। जहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, मतलब उसको खुद को भी समझ में नहीं। इफ देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इट मीन्स देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना चाहिए। अभिजीत आपको समझ में आया? कौन सा? नहीं, क्यों नहीं लेंगे, हम तो एनी टू पेयर्स, देखिए ना, बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, या इस सर्कल में 50 पॉइंट्स है, इनमें से ये दो सर्कल भी तो एक पेयर, ये दो पॉइंट भी तो एक पेयर होगा ना, ये सुनो। अच्छा आप ऐसे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए मीनिंग जो है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ। समझ में आया ना? तो देखिए ये स्टैट्स वाला थोड़ा सा आइडिया मैं भी ये क्वेश्चंस कर पाया, क्योंकि स्टैट्स वाला आइडिया मेरे पास था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल होता है, यहाँ पे वेरिएबल है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का मान लीजिए, डिस्टेंस को आप वेरिएबल लिया हो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके 10 सेंटीमीटर तक ले, तो 1 से लेकर 2 तक उसमें आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे डिस्टेंस में 0 0 रहता जाएगा, मतलब कोई पेयर्स नहीं मिलेगा।
फिर 10 सेंटीमीटर के करीब जाके 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके आपको फिर से मिल जाएगा बहुत सारा पॉइंट। तो फिर से एक पीक आएगा और वो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कोर्स ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि पहले आपके पास एक सर्कल के अंदर खेलने का मौका था, अब तीनों सर्कल, ठीक है। और फाइनली जाके आपका फिर से डाउनवर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी बताया था टू लग रहा है, आस्क योरसेल्फ कि क्या आपने खुद को पूछा था, ये ऑब्जर्वेशन कुछ लोगों ने किया था एंड दे हैव सेड द आंसर विल बी 4, बट 4 भी आंसर नहीं होगा। आप लोगों ने सोचा 3 सर्कल्स है 3 ग्राफ होगा, क्यों? डिस्टेंस पर्टिकुलरली 2 रेंज है, एक है छोटा रेडियस से छोटा डिस्टेंस का एक रेंज, और दूसरा है कैपिटल आर, मतलब ये वाला डिस्टेंस। इसके अलावा और कोई पीक का मौका ही नहीं है, बाकी सब नो मैन्स प्लेस है, नो पॉइंट्स प्लेस। आई होप यू गॉट इट। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। अगर आप लाइटली भी सोचोगे, मैं बहुत डीपली बताया आपको अंदर घुसकर, अगर आप लाइटली भी सोचोगे, यहाँ पे कोई एक पॉइंट उठाइए स्टूडेंट, एक पॉइंट उठाने के बाद आप देखो पर्टिकुलर एक डिस्टेंस तक उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, उसके बाद कोई डेंसिटी नहीं रहेगा, कोई और पेयर नहीं रहेगा, उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट के टाइम के बाद, आप सर्टेन अमाउंट के डिस्टेंस के बाद फिर से एक पीक आएगा, क्योंकि ये वाला उसके बाद कोई नहीं रहेगा। तो दिस पिक्चर ऑलवेज टेल्स यू दैट स्टोरी। रूनी पंडा क्यों ऑप्शन 4 होगा? ऑप्शन 4 का मीनिंग है पहले एक डिस्टेंस पे पीक आया, दूसरा एक डिस्टेंस में पीक आया, तीसरा एक डिस्टेंस में पीक आया। वेयर इज दिस थर्ड डिस्टेंस रूनी? वेयर इज दिस थर्ड डिस्टेंस? इफ वी आर गेट इनटू दैट सर्कल, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में पहले शून्य था, मतलब स्टार्टिंग पे 0 था, उसके बाद 0 होने का कोई मौका यहाँ पे अगर करते हो आप, ये जो है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस में ये क्या था? 0 था, 0 होकर ये पीक हो गया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में उसका डेंसिटी ज्यादा हो गया, ठीक है। आपको समझना है तो इस आइडिया से आप समझो, पर्टिकुलर आप 1 सेंटीमीटर लेते हो, उसमें आपको पेयर मिल ही जाएगा, कोई ना कोई पेयर मिल ही जाएगा, स्कैटर्ड डेटा है। अगर 1.2 सेंटीमीटर लेते हो फिर भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हो कि सर यहां से एक पॉइंट है, यहां से मैं एम्प्टी तक अगर ड्रॉ करूं, ऐसा नहीं होगा, ये कंसेप्ट नहीं है। कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको इस डिस्टेंस में, क्योंकि दे आर स्कैटर्ड डेटा, आर्बिटरीली प्लेस्ड। तो अगर 1 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर के अंदर पे कोई भी डिस्टेंस उठाओ, चाहे वो 1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, 1.5 हो, कोई ना कोई पेयर्स आपको मिल ही, since they are arbitrarily distributed, you can always assume that. ठीक है रोनी? आई होप यू गॉट इट। इस आइडिया ऑप्शन 3 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तीसरा डिस्टेंस कब आएगा? एक डिस्टेंस ये वाला है जहां पे पीक आया था, उसके बाद फिर से 0 बन गया, उसके बाद पीक आया। आपका जो थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, उसमें 2 बार डाउन हुआ, 0 आया 2 बार, कैसे 2 बार 0 आएगा? और पीक आया उसके बाद 3 बार, कैसे 3 बार पीक आएगा? सोचिए, समझिए, फिर एनालिसिस कीजिए। एनीवे, थिंक अबाउट इट। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम CSIR नेट। समझना है कंसेप्चुअली, सोचिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर किसी किसी बुक में मिल जाएगा आपको, गलत है। ऑप्शन 2 है, गलत है। एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आया था बाद में, जो करेक्टेड आंसर की था 3 इज द आंसर। दैट मीन्स दिस ग्राफ, 2 पेयर्स ऑफ ग्राफ जो मैंने दिखाया आपको। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? क्या रूनी समझ में आया आपको लास्ट क्वेश्चन?
अगर नहीं आया है, थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर से देखना वीडियो और खुद से सोचना। या वेरी गुड। चलिए इसके बारे में सोचिए। ये शायद 2018 में आए थे, 2018 और 2017। तो देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक है, कोई एग्जाम्स में नहीं आते। नो एग्जाम्स इन इंडिया। गेट एग्जाम में नहीं आते हैं, आपका पीएचडी एंट्रेंस में नहीं आता है, गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ ही दीजिए, उसमें नहीं आते ये इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये एनालिसिस वाला क्वेश्चंस आपका सीएसआई नेट में ही आता है, तो आपको ये तो ढूंढना पड़ेगा। बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, इंटर रिलेशनशिप के बारे में। क्या हो जाएगा? Correlation between x and y is stronger in A than in B. Correlation between x and y is absent in B. Correlation between x and y is weaker in A than in B. Y and x have a cause effect relationship in A but not in B. Right. टूनी ने बताया फोर्थ ऑप्शन प्लीज एक्सप्लेन। इन पे बताता हूँ, इन पे एक बार फिर से बताऊंगा। थिंक अबाउट इट, लेट मी हैव सम वाटर। आप इसके बारे में सोचिए और बताइए क्या हो। सोचिए सोचिए, टेक योर टाइम। क्या हो जाएगा? निराशा ने बताया 1, तनया ने बताया 1। रूनी आप आंसर बताइए। अनुश्री ने बताया 1, वेरी गुड। भाविका ने बताया 1। बहुत अच्छा, ट्राई कीजिए स्टूडेंट, सोचिए। देखिए स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन नाम का चीज होता है। अगर ये जो सीएसआई नेट का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है, अगर आपको स्टैट्स पता भी नहीं है, भूल भी चुके हो, कोई बात, नॉर्मल आपका एप्टीट्यूड वाला ही स्टैट्स है ये। कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन, सिंपल एज इट इज। तो कौन सी डेटाज है, दे आर जस्ट लाइक स्कैटर्ड पॉइंट। तो स्कैटर्ड ज्यादा हो जाएगा तो रिलेशनशिप अच्छा होगा, या स्कैटर्ड होने में भी एक पैटर्न रहेगा तो रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो बहुत ज्यादा कैओस है लेकिन उसमें अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न है तो रिलेशनशिप क्या अच्छा होगा या बुरा होगा। और बहुत ज्यादा कैओस है और उसमें कोई पैटर्न भी नहीं है, हाउ यू विल हैंडल दिस, राइट? क्या हो जाएगा आंसर? एवरीबडी शुड थिंक अबाउट इट, बताइए।
एवरीबडी शुड थिंक अबाउट इट। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए तनाया मुंजल अब बताइए, तानिया मुंजल बताइए आपका आंसर बताइए। क्यू कांस्टेंट है? एक्स 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 तो बढ़ रहे हैं, वाई का वैल्यू आप कांस्टेंट बताइए, नॉट कांस्टेंट। ये तो आर्बिटरी ग्राफ हो। स्कैटर्ड ये वर्ड ठीक है, अगर आप बताओगे कांस्टेंट तो वो एक बहुत तगड़ा रिलेशनशिप बन जाएगा कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वाई का एज पर दैट टाइम के साथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मतलब आप अगर इसके बारे में बताना चाहते हो आप ऐसे करके देखो पॉइंट वाइज। एक्स का वैल्यू जब कम था वाई का एक वैल्यू था, ओके, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट अ पैटर्न। सेकेंड वैल्यू पे एक्स का वैल्यू बढ़ा, वाई का वैल्यू पैटर्न बढ़ा, वाह एक अच्छा चीज हो रहा है। उसके बाद एक्स का वैल्यू घटा, वाई का वैल्यू कमा, उसके बाद फिर से बढ़ गया, उसके बाद फिर से कम गया, बढ़ गया, उसके बाद फिर से बढ़ गया, कम हुआ बढ़ गया, मतलब नो सीक्वेंशियल पैटर्न, no particular pattern in this scattered data, right? So they are scattered and no particular pattern, no particular pattern. तो दिस इज क्वाइट श्योर कि अगर कैओस, इसको कैओस में बता सकते हो आप, कैओस अगर ज्यादा है और उसमें कोई पैटर्न नहीं है, मान लीजिए आप घर, आपका घर आप अरेंज करना चाहते हो, बहुत बुरा हाल बन गया, मेस हो चाहे हॉस्टल हो, बहुत बुरा हाल बन गया, आप उसको अरेंज करना चाहते हो। अगर आपके दिमाग में एक पैटर्न है कि ये करूंगा ये, यानी कि प्लान है, तो आप प्रॉपरली कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव एनी प्लान, इफ यू आर नॉट, यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर ऑर्डर और उसके बाद स्कैटर्ड भी है, तो वो इम्पॉसिबल है अरेंज करना। तो ये चीज यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखिए स्कैटर्ड तो है लेकिन उसमें भी एक रिलेशनशिप है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है, आप देख सकते हो ये ऐसे करके जा रहा है। एक दो स्कैटर्ड है लेकिन फिर भी उसके अंदर एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन। ठीक है, छोटा था वाई, उसके बाद बड़ा हुआ, उसके बाद बड़ा हुआ, ऐसे घटा, फिर भी लेकिन ज्यादा पोर्शन में आप देख सकते हो कि एज एक्स इंक्रीज वाई भी बढ़ते बढ़ते जा रहा है। so that is quite sure correlation between x and y is stronger than a than in b। तो ये करेक्ट। ऑप्शन टू के बारे में सोचिए। ऑप्शन टू इज सेइंग कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज एब्सेंट इन बी। क्या ये सही है? कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज एब्सेंट इन बी। इसका आंसर बताएगा निराशा कमले। निराशा बताइए कि बी में कोई कोरिलेशन नहीं है क्या? क्या बता पाओगे? बताइए। नहीं ऐसे आप मत बताइए, आप कंक्लूजन में पहुंच जा रहे हो, कंक्लूजन मत ड्रॉ कीजिए। कैसे प्रोपोर्शनल हुआ? यहाँ पे एक्स का वैल्यू कम था, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ज्यादा हुआ, वाई छोटा हो गया, कैसे आप बता रहे हो? अब फास्ट तक मतलब क्या? आप ये फास्ट अगर ये के बारे में सोचोगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ना। यहाँ तक आप गए हो, उसके बाद ये डेटा एक्स का वैल्यू ज्यादा हो गया, वाई का वैल्यू घट गया पहले। बोल सकते हो ज्यादातर डेटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा बर्ताव कर रहा है ना निराशा? हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग था। मेरा क्वेश्चन है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज एब्सेंट इन बी। क्या ये सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट के बारे में मुझे बताइए कि बी में एक्स एंड वाई के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, क्या ये स्टेटमेंट सही है?
Yeah, just 1 minute, Nirasha. One by one, I'll ask. रूनी पांडा, रूनी पंडा ने बताया करेक्ट है. रूनी अनम्यूट योरसेल्फ. रूनी अनम्यूट योरसेल्फ. चलिए अभिजीत बताइए. अभिजीत ने बताया नो. अभिजीत बता दिए. हेलो अभिजीत बताइए. हाँ बताइए. बहुत अच्छा. देखिए स्कैटर्ड हो चाहे लेकिन रिलेशन तो है. रिलेशन है बट दे आर मे बी नॉट ए गुड रिलेशन बट रिलेशनशिप है. राइट अभिजीत. तो ये बात भी गलत है. कोरिलेशन बिटवीन एब्सेंट ये कभी नहीं बता पाओगे. ऑप्शन 3 कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज वीकर इन ए देन इन बी. ये भी गलत है. ये तो पहला का एकदम ऑपोजिट है. पहला अगर सही है ये गलत होना जरूर जरूर गलत होगा. राइट. इसमें स्ट्रॉन्गर है इसमें वीकर है. y and x have a same cause effect relationship in A but not in B. y and x have a cause effect relationship in A. अभिजीत इसके बारे में क्या ख्याल है आपको? What do you think about this? Why it is false? हाँ, इसीलिए हर एक ऑप्शंस को देखना चाहिए. आप लोग एक ऑप्शंस करके चला जाते हो और जो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन ले रहे हैं हर एक ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं. ठीक है. तो देखिए सेम कॉज इफेक्ट मतलब क्या है. मतलब एक्स अगर बढ़ेगा वाई को भी बढ़ना चाहिए था. तो ये चीज अगर सेम पैटर्न फॉलो करके जाता तो आप बता सकते हो ये कॉज है इज द इफेक्ट. एक्स का वैल्यू बढ़ जाना ये कारण है. वाई का भी वैल्यू बढ़ जाएगा. क्या बता रहा है पूजा? बिकॉज दे आर नॉट नेगेटिवली रिलेटेड. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेरा क्वेश्चन क्या है सुनिए. लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है या रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग? सारा ने बताया वाई सेम नहीं इंक्रीज कर रहा है. मैं वही बता रहा हूँ स्टूडेंट. आप देखो यहाँ पे जो स्कैटर्ड डेटा है जो मैंने आपको बताया कि इसमें कभी कभार ब्रेक कर रहा है रूल. मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा में वो तो कवर कर रहा है लेकिन कभी कभार आप देख रहे हो कि एक्स और वाई का चेंजेस सेम नहीं हो रहा है. अगर मान लीजिए किसी एक को आपने कॉज बताया किसी आप एक को आप इफेक्ट बताया तो वो रूल बिगड़ जाएगा उस पॉइंट में जाके. यू कैनॉट से वाई एंड एक्स हैव ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ए बट नॉट इन बी. ठीक है. ऐसे अभी कभी नहीं बता पाओगे. एनीवे तो ये जो चीज है ये भी गलत है. तो ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ओके चलिए. और उसके बाद इसको ट्राई कीजिए. हर एक क्वेश्चन एनालिटिकल है सोचने वाला क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन सीएसआई नेट में आया है. ये शायद 2019 का क्वेश्चन है. हर साल आ रहा है. हर साल एवरी ईयर यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन अबाउट इट. सोचिए एंड बताइए. थिंक अबाउट इट एंड टेल मी. अगर दिक्कत हो रहा है मतलब यही आपको पढ़ाई करना है. अभी जहाँ पे दिक्कत होता है वही अपग्रेडेशन चाहिए. स्टूडेंट थोड़ा सा धीरज रखिए और ट्राई कीजिए. दिमाग पे जोर लगाइए. monkey climbs a tree to eat fruit. The amount of energy gained after eating fruits and the energy spent in the climbing on the different branches have a relationship shown in the figure. एक है एनर्जी गेन जो खाकर उसको मिला. एनर्जी स्पेंड जो इधर उधर जाके उछल के उसने विनष्ट किया. राइट. तो
तो ये जो दो के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसा है? इतना बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या बताया गया है। द रेशियो ऑफ एनर्जी गेन टू एनर्जी स्पेंड, मतलब एनर्जी गेन डिवाइडेड बाय एनर्जी स्पेंड, इन दोनों के बीच में रेशियो, so that amount divided by that amount, which one is the correct, which one is the correct? यूनिटी मतलब कार्व इज यूनिटी नहीं है, एट पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द कार्व इज यूनिटी। भाविका, स्लोप ऑफ द कार्व इज यूनिटी मतलब tan थीटा का वैल्यू 1 है, ठीक है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री ले लेते हो आप, तो एट द पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ द कार्व इज यूनिटी। सोचिए और बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। How to do that? You need to have first think about this idea. एनर्जी गेन्ड बाय एनर्जी स्पेंड, इसका जो रेशियो है ये कब मैक्सिमम होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है ये कब मैक्सिमम होगा, यानी कि आपको सोचना पड़ेगा कोई फ्रैक्शन कब मैक्सिमम बन जाता है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है जब वो फ्रैक्शन मैक्सिमम होता है तब। अगर ये आप सोच पाओगे तो ये पिक्चर से आपको एक पॉइंट जो ऊपर नजर आएगा, इस पॉइंट में हो सकता है पॉसिबल गेस, हो सकता है मैक्सिमम। अगर वो पॉइंट मैक्सिमम हो सकता है तब आप ऑप्शन पे आ जाइए और एनालिसिस कीजिए कि आपका वो पॉइंट क्या इसी ऑप्शन से डिनोट कर सकते हो आप, अगर हाँ तो हाँ। You cannot be assured about such questions in the exam hall. You need to guess it, but with a logical reasoning. With a logical reasoning. पहले आप इसको अप्लाई कीजिए, इसको बारे में सोचिए, फ्रैक्शन के बारे में, उसके बाद पिक्चर पे आइए, पिक्चर पे प्लॉट कीजिए वो पर्टिकुलर पॉइंट, उसके बाद ऑप्शंस पे आइए, ऑप्शन से वेरीफाई करके देखिए कि वो आ रहा है कि नहीं। पूजा ने बताया एनर्जी गेन इज ग्रेटर देन एनर्जी स्पेंड जब हो जाएगा तब ये बन जाएगा। लेकिन पूजा यहाँ पे आप देखो यहाँ के जो ग्राफ का नेचर है, दिस इज नॉट ओनली एनर्जी स्पेंड बाय एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी गेन भी हो रहा है, कॉन्स्टेंटली एनर्जी गेन हो रहा है और एनर्जी स्पेंड भी हो रहा है, मतलब टैंक में दोनों ही पाइप ओपन है, पानी आ भी रहा है पानी जा भी रहा है। You cannot take a particular point and say this is the highest point because energy gained by energy spent, दोनों में वो ज्यादा बड़ा हो गया। और यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं है कि आप समझ पाओगे कि एनर्जी स्पेंट और एनर्जी गेंड का अमाउंट क्या है, ओनली एक ग्राफ है। तो आपको दोनों को लेकर समझना होगा, एनर्जी स्पेंट और एनर्जी गेंड का नेचर ऑफ चेंज क्या है, इसके बारे में आपको समझना होगा, सोचना होगा। एनर्जी गेंड बाय एनर्जी स्पेंड स्टूडेंट्स तब सबसे ज्यादा होगा अगर इसका डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा और न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा पोजीशन एक है जब एनर्जी गेन्ड और एनर्जी स्पेंड आप ट्राई करोगे, ये जितना छोटा हो सके आप ट्राई करोगे। देखो जितना राइट साइड पे जाओगे एनर्जी स्पेंड बढ़ता जाएगा, एनर्जी गेन भी बढ़ रहा है लेकिन एनर्जी स्पेंड भी बढ़ता जाएगा। और एनर्जी गेन क्या है, वो तो बढ़ ही रहा है लेकिन एनर्जी स्पेंड जितना बड़ा होता जाएगा तो इसका फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। कौन सी वो पॉइंट है इस ग्राफ में, इस पॉइंट में एनर्जी गेन्ड बाय एनर्जी स्पेंड मैक्सिमम, कौन बताएगा मुझे। एनर्जी स्पेंड जितना कम होगा और एनर्जी गेन मैक्सिमम जितना ज्यादा होगा, इसका फ्रैक्शन तब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी गेन बाय मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्पेंड का कॉम्बिनेशन पे ये मैक्सिमम। यस निराशा बताइए। टू द ऑरिजिन मतलब ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। क्या
टेंजेंट का मीनिंग होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें ये टेंजेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला टेंजेंट, ये टेंजेंट अगर यहाँ से जाएगा, देखो ये तो ऑफ कोर्स 0 0 से नहीं जा रहा है, समझ में आया? ये टेंजेंट जैसा इस पॉइंट पे जा रहा है, पॉइंट से जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया निराशा? ये टेंजेंट जो है जैसा इस पॉइंट से जा रहा है, ये टेंजेंट जो है इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो कहीं जाके एक्स एक्सिस को मीट करेगा, उस पॉइंट से जाएगा। इसी में डाउट है, बाकी सब समझ में आ गया? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4। कौन सा ग्राफ में कौन सा पॉइंट पे शो हो रहा है बताइए? ग्राफ में कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसमें एनर्जी गेन्ड मैक्सिमम है लेकिन एनर्जी स्पेंट मिनिमम? आप मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या समझ आया आप बताइए, आपको जो समझ है उस समझ के हिसाब से आप बताइए। एनर्जी गेन्ड बाय एनर्जी स्पेंट का यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, 1 2 3 4, मैं आपको देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट्स आप लोगों को मैंने बताया। 9 पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट में इसका रेशियो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम हो? अच्छे से सोचिए। रूनी ने बताया 4, अनुश्री ने बताया 5, पूजा ने बताया 5। देखिए जब मैंने ड्रॉ किया आप लोगों को ये बता रहे हो कि 5 होगा, तो अनुश्री कटारे आप बता रहे हो 5। क्यों अनुश्री? वाई अनुश्री? मतलब ये स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन, राइट? यहाँ पे देखो शार्प चेंज हो रहा है, तो एनर्जी गेन का अमाउंट स्पेंड के अमाउंट से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये मैक्सिमम तब होगा इस 5 पॉइंट में जाकर जब एनर्जी गेन बहुत ही बढ़ गया लेकिन एनर्जी स्पेंड ज्यादा नहीं बढ़ा, राइट? तो एनर्जी गेन बाय एनर्जी स्पेंड इस पॉइंट में मैक्सिमम ही था, उसके बाद एनर्जी गेन बढ़ता जाएगा लेकिन एनर्जी स्पेंड भी बढ़ता जाएगा, यानी कि इसका रेशियो फिर से डाउन के तरफ आ जाएगा। तो रेशियो गोइंग डाउन, वेरी गुड। तो ये बात आप खुद से क्यों नहीं बताया अनुश्री? ठीक है, ऑप्शंस के बारे में बाद में देखें। अब देखिए ये समझ में आ गया आप लोगों को? हरमनप्रीत कौर देखिए अच्छे से, अनुश्री ने क्या बताया, 5 नंबर जो पॉइंट है ये। अब देखिए ऑप्शन क्या है, एट ए पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम। तो देखिए स्लोप का क्या आइडिया है? मान लीजिए आपका ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्लोप इज जस्ट कोई भी लाइन ले लो, थिंक अबाउट एनी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल करता है उसका tan थीटा को हम स्लोप बताते हैं, ठीक है ना? मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन अगर ले लो तो थीटा बढ़ गया, इसका स्लोप हो जाएगा tan। स्लोप के बारे में पता है आपको? तो देखो स्टूडेंट, tan थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा, सिंपल बात। अब tan थीटा का वैल्यू का रेंज देखिए, tan थीटा, थीटा का मान लीजिए वैल्यू है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, 1√3 और इंफिनिटी, मतलब चलता जाता है, ठीक है? ये कभी कभार ये जो होता है tan 90 को अनडिफाइंड भी बताता है, बट इंफिनिटी बताता है, राइट? तो अब देखो tan 90 जो है वो चलता जाएगा। अब जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट, हाँ सही कहा, ये अनडिफाइंड भी बता सकते हो आप, एनीवे। तो बट द ग्राफ इज शोइंग tan का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, आप देखो
वो 0 होता है, उसके बाद 1/√3 1 से छोटा है, उसके बाद 1 हो गया tan 45 पे, उसके बाद √3 हो गया। यानी कि ये बढ़ता जाता है, tan का वैल्यू बढ़ता जाता है, जिसका थीटा जितना ज्यादा होगा tan का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब देखो कि tan का वैल्यू अगर थीटा इस तरफ होगा, अगर कोई लाइन है, अगर लाइन ऐसा है तो थीटा छोटा है तो tan का वैल्यू छोटा होगा। अब उसके बाद देखिए, मान लीजिए ये वाला जो लाइन है जिसका 45 डिग्री एंगल है, उसमें उसमें tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसमें tan का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। तो इसके राइट तरफ, इसके नीचे जितना लाइंस है उसका स्लोप कम होगा, और इसके ऊपर जितना लाइंस है उसका स्लोप ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। अब मान लीजिए कि एक लाइन है, पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है, वो यहां से जा रहा है, तो इसमें देखो एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो फिर से नेगेटिव बन जाता है, tan का वैल्यू नेगेटिव बन। तो स्लोप समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए स्टूडेंट। स्लोप समझना बहुत ही जरूरी है, यस और नो। कोई भी लाइन का एक स्लोप होता है जो मैक्सिमम हो जाता है, आप देख सकते हो tan 90 की तरफ जितना जाएगा स्लोप बढ़ता जाएगा, उसके बाद फिर से अगर नेगेटिव पे आ जाता है वैल्यू, तो वो नेगेटिव पे आ जाता है वैल्यू, गोल्ड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन, नेगेटिव पे अगर वैल्यू आ जाता है तो फिर से घटता जाएगा tan का वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये चीज है। अब देखो, एट पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ द कर्व इज एट द मैक्सिमम, तो देखो स्टूडेंट इस तरफ स्लोप ऑफ द कर्व मैक्सिमम हो रहा है, मतलब देखो ये वाला लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इसका स्लोप बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि tan 90 के करीब हो रहा है, 90 के करीब। तो यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होने से कभी भी ये रेशियो मैक्सिमम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए रिसीव कर दिए स्लोप। स्लोप के बारे में स्टूडेंट समझना है, स्लोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्लोप के बारे में आपको समझना होगा, नहीं तो क्वेश्चन में स्लोप के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या, आइडिया क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। थोड़ा ज्यादा जल्दी में बता दिया, बेसिक कंसेप्ट है इसीलिए धीरे से बताता हूं। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई भी लाइन का एक स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, मान लीजिए ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को जिस एंगल पे काट करता है, उस एंगल का tan थीटा को हम बताते हैं स्लोप। तो दुनिया में जितना लाइन है प्लेन के ऊपर, अब अगर आपको उसको प्लेस करोगे तो व्हाट विल हैपन, two kind of scenario can happen. One is this can cut the x-axis. If it will cut, it will create an angle like this, like this, like this. अब मेरा जो बात है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए tan थीटा का वैल्यू को स्लोप बता दे। अब tan का वैल्यू का नेचर क्या है, tan 0 होता है, उसके बाद 1/√3 होता है, उसके बाद 1 होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो देखो, तो जितना डिग्री बढ़ रहा है 0 से लेकर 90 तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये 90 डिग्री तक जितना 10 डिग्री एंगल बढ़ रहा है, उतना स्लोप ज्यादा होता जाएगा, उतना स्लोप ज्यादा होता जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतना स्लोप ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। स्लोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा बात है। जितना बढ़ता जाएगा उतना स्लोप ज्यादा होता जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए कमेंट करके, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स। जल्दी से बताइए। यस, वेरी गुड, आया। तो देखो ये है स्लोप का कंसेप्ट। अब इस पिक्चर पे आ जाइए। इस पिक्चर पे स्लोप कब से ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा? अब देखो कि पहले पे जब शुरू हो रहा था, जिसमें चढ़ाई ज्यादा होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है। अब माउंटेन में ये वर्ड यूज करते हो, स्लोप कम है स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है मतलब ज्यादा खड़ा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसमें स्लोप ज्यादा है, चढ़ाव ज्यादा है। लेकिन इट डजंट मीन कि एनर्जी गेन बाय एनर्जी स्पेंड भी मैक्सिमम है, क्योंकि आप खुद ने बताया कि ये वाला पॉइंट नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपका आंसर है 5। तो स्लोप मैक्सिमम, स्लोप ऑफ द कर्व मैक्सिमम होने से ये मैक्सिमम नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट।
समझ में आया? इट इज नॉट करेक्ट। एट ए पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द कर्व इज यूनिटी, मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री में tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, स्लोप यूनिटी होता है, मतलब स्लोप का वैल्यू 1 बता रहा है ये लोग। स्लोप यूनिटी मतलब स्लोप का वैल्यू 1, स्लोप का वैल्यू तब भी होगा 1 जब ये tan 45 होगा। अब इसको ड्रॉ करो, 5 से लेकर इस लाइन को 0 0 तक अब कनेक्ट करो। क्या ये 45 डिग्री हो रहा है? नहीं, देखिए उससे ज्यादा है। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि 45 डिग्री जो होता है वो एग्जैक्टली इन दोनों को बीच से जाता है। तो ये 45 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि एट ए पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द कर्व इज यूनिटी, ये भी नहीं। गॉट इट और नॉट? कमेंट करके बताइए, है ना? या हाँ हाँ, 45 डिग्री का आइडिया है आपके पास तनया? तनया, इतना 90 डिग्री होता है पता है आपको? इसका बीच वाला लाइन फिर से 45 बन जाएगा। तो देखो ये वाला लाइन जो है थोड़ा सा और खड़ा है, बीच वाला लाइन ये वाला है, तो बीच वाला से ज्यादा है ये एंगल, तनाया। तो इस पॉइंट पे आपको, आपका गेस क्या था? 5 नंबर पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, राइट? तो इस पॉइंट पे स्लोप जो है वो 1 नहीं होगा, उससे कुछ ज्यादा होगा, ये सुन लो। The question is the ratio of energy gain to energy spent will be maximum at a point where the slope of the curve is unity। ये सही नहीं है, 45 डिग्री नहीं होगा ना, है ना यार? 45 डिग्री नहीं हो रहा है ना उस पॉइंट में। आपको कंफ्यूजन, स्पीक अप नहीं तो क्या, कैसे समझे? व्हाट इज? हाँ हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, समझ गए हो आप? थैंक यू। तो देखो ये जो नहीं होगा। अब एट ए पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, अब देखो इस कर्व जो है इसका टेंजेंट ओरिजिन से जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म करना होगा। लास्ट ऑप्शन देखो, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व नाम का कोई चीज नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व, ये तो उठता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट आता जाएगा, इसमें क्या मैक्सिमम होगा? कभी नहीं। एनर्जी स्पेन भी तब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 3। गॉट इट? देखिए बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाया मैं, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये चीज अगर आपके पास समझ है, क्वेश्चन करने में 3 to 5 सेकेंड्स लगेगा, मतलब जल्दी देखकर आप बता पाओगे। हाँ, स्लोप का आइडिया जो है वो होता है टेंथ। कोई लाइन का, यहाँ पे देखिए एक वर्ड बार बार आ चुके हैं, स्लोप स्लोप स्लोप, राइट निराशा? तो फिर पता है, हाँ नहीं, कुछ ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा आपको, एक नॉलेज आपके पास है, उसका अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रिक था वो था ये समझना कौन सा पॉइंट होगा। आपको समझ में आया? 5 नंबर पॉइंट होगा, 5 नंबर पॉइंट होगा, ये समझ में आया ना? फिर तो ये स्लोप वाला बात, पहले तो वो समझ, वो गेस करना होगा आपको कि वो जो कर्व है उस टान पे ही मैक्सिमम, वो आपका एक नॉलेज से गेस कर रहे हो आप, फिर उसके बाद ऑप्शन से वेरीफाई करोगे। Done? So 2 points are there. First is you need to guess it. You need to guess it. How you can guess it? It's very hard to teach guessing, right? How you can guess it? My point is you need to have the knowledge. What knowledge? कि fractions में ऊपर अगर ज्यादा है, नीचे अगर कम है, तो our try will be ऊपर जितना पॉसिबल ज्यादा हो सके और नीचे कम हो सके। ये दो चीज कब हो रहा है इस पॉइंट? ये कैसा पॉइंट है
ऊपर का वैल्यू भी ज़्यादा है, सेकेंड भी कम हुआ है। तो देखो इस पॉइंट में आपका रेशियो मैक्सिमम हो, अगर मैक्सिमम रेशियो होता है उसके बाद आपको स्लोप वाला कंसेप्ट काम पे लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत दिमाग का उपयोग करवा रहा हूँ मैं आपका। चलिए अब इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा मेहनत मतलब दिक्कत ले लीजिए, उसके बाद देखना सब स्मूथ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोचिए खुद, खुद सोचिए। आई एम हाइडिंग माई सेल्फ बिकॉज कुछ वर्ड्स मेरे पीछे चला गया। 2007। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सॉरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। धीरज रखकर सोचिए। येलो वाला लाइन है एम्प्लॉयबल पीपल टू whom you can give an employment. The the blue one is the jobs. अच्छे से सोचो उसके बाद बताओ। तो व्हाट वी कैन थिंक अबाउट इट? तानिया ने बताया 2। रूनी यू आर चेंजिंग। आपका पहला ऑप्शन था 4, उसके बाद 2, अब 1। अच्छा सेकंड फिक्स, ओके। निराशा ने बताया 2, अभिजीत ने 2, अनुश्री 2, भाभी का 2। वेरी गुड। आई आई लाइक द स्पिरिट, सोच कर बताना चाहिए।
ठीक है, और सोचकर पहले बताने वाला पीपल जो है दैट इज तानिया मुंजर। तानिया आप बताइए, तानिया बताइए। बताइए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए तानिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। पहले जो आपने बताया नंबर ऑफ जॉब्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल डिक्रीज्ड एट द सेम रेट फ्रॉम 2007 टू 2007, 7 टू 17 तक सेम डिक्रीज्ड एट द सेम रेट बताया। क्यों सेम रेट नहीं है बताइए। हेलो। राइट, सेम रेट में कभी नहीं। सेम रेट होता तो पैरेलल होता, राइट। पैरेलल अगर हो जाता स्टूडेंट्स तो सेम रेट हो जाता, फर्स्ट ऑप्शन ड्रॉप हो। बहुत अच्छा। सही। मतलब क्या बता रहे हो आप ऐसे? वही तो पैरेलल ही हुआ ना, यही बताया। हेलो। एक सेकंड तनया, एक सेकंड। आपका सेकंड ऑप्शन हम सुन नहीं पाए क्योंकि वो ऑडियो म्यूट हो गया था। ऑडियो म्यूट नहीं हुआ था, कुछ मिस हो गया। धीरे धीरे बताइए सेकंड ऑप्शन पर। देयर आर सरप्लस जॉब्स फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड। इसके बीच में मतलब इस पॉइंट पे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखो, हर एक स्टूडेंट तनिया धीरे बोलने से क्या होता है हर एक को समझ। आप देखो 2011 और 2013 के बीच में यहाँ पे 2012 है, और उसमें ये जो ग्राफ देखो मीट कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज सरप्लस जॉब्स फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड। ये जॉब्स का है, जॉब्स का ये ग्राफ है। मतलब क्या है, आप देखो यहाँ के जॉब्स, मान लीजिए इस पॉइंट में, इस पॉइंट में आप जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो देखो 14 जॉब्स है, लेकिन एम्प्लॉयबल पीपल कितना है, 10 है। मतलब हमेशा अगर आप देखोगे जॉब्स का लाइन ये एम्प्लॉयबल पीपल के ऊपर है। इसका मतलब है नंबर ऑफ जॉब्स इज ऑलवेज हायर देन द एम्प्लॉयबल पीपल। जितना आदमी को जॉब चाहिए उससे ज्यादा, एक्चुअली एम्प्लॉयबल का मीनिंग अलग होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो एम्प्लॉय दे मतलब एम्प्लॉयमेंट करेगा उसका जो नंबर है उससे जॉब्स का नंबर ज्यादा है। यानी कि देयर वेर सरप्लस जॉब्स फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स। ये सही है, राइट तानिया? बहुत अच्छा। अब बताइए ऑप्शन 3। हेलो। पॉसिबल, फिर हर एक को जॉब मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे जीरो जाएगा, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स, इट्स ए रॉन्ग थिंग। वेरी गुड। देन मतलब यहां से लेकर यहां तक एम्प्लॉयबल पीपल ज्यादा है जॉब से ज्यादा। तो उसमें मतलब उस समय अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम है, राइट। इतना लोग है जिनको जॉब नहीं मिलेगा। दो पीपल, मान लीजिए यहाँ पे 16 है, 14, दो पीपल को जॉब नहीं मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम है, तो मिनिमम नहीं मैक्सिमम होना चाहिए था ये ऑप्शन भी। आई होप आप सबको समझ में। ठीक है तनया।
तो थैंक यू सो मच तानिया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आपने बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप यू गॉट इट। ऑप्शन जो हो जाएगा, देयर वर सरप्लस जॉब्स फ्रॉम 2012 ऑन। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये सारे क्वेश्चंस टीचिंग का कोई थियरी नहीं हो, इसका आइडिया जो है आपके अंदर ही है। अब ये बेहतर बन सकता है जितना क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, दूसरे कैसे कर रहा है उससे भी आप सीख सकते हो। तो इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चंस आया सोचने के लिए, ठीक है। और कैसे सोचना है वो भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या होता है, हम सोच तो लेते हैं लेकिन बहुत लाइटली सोचते हैं, आलसी की तरह सोचते हैं। मेहनत करके सोचना तब जाके हो। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करिए, क्या होगा इसका आंसर? Trends of two quantities over 5 years are shown in the graph. What will be the correct answer, student? सरा, आपने आंसर क्यों नहीं बताया लास्ट क्वेश्चन का? विजय लक्ष्मी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आंसर कहाँ पे है आपका? आई वांट, श्रद्धा, आई वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीबडी। स्वर्णाली, जो पार्टिसिपेट करोगे उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता जाएगा। तो प्लीज पार्टिसिपेट। जो भी आ रहा है, मे भी नहीं आ रहा है, कुछ भी आ रहा है लिखो। भाविका ने बताया 3, अनुश्री ने बताया 4। अरे पूजा, कोई बैड नहीं होता है, आपने फेस ज्यादा नहीं किया। जितना ज्यादा फेस करोगे, यू आर नॉट बैड एट ग्राफ्स, पूरा दुनिया का प्रॉब्लम है। क्योंकि हम करते नहीं है, सोचते नहीं है। कुछ बैड, खराब बैड, कोई हम क्या जन्म से कुछ मतलब लेके ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी चीज क्या दिन में होता है क्या? हरमनप्रीत कौर, बहुत अच्छा। ज्योति, ज्योति अक्रूपे, अब बताइए। दिस नेम सीम्स टू न्यू फॉर मी। ज्योति, कैन यू हियर मी? ज्योति, आर यू देयर? बहुत अच्छा, बहुत सारा स्टूडेंट ने सोचा। ज्योति अक्रूपे, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक? गोल्ड तिरके, गोल्ड तिरके, आप बताइए। गोल्ड तिरके, आर यू देयर? क्या हो गया?
सर का रीजन तो बताना है ना आपको। चलिए अनुश्री ने 2 बार आंसर चेंज, ठीक है। अच्छा चलिए भाविका से सुनते हैं। भाविका मेहता बताइए भाविका। मीन वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? एवरेज वैल्यू। अगर ग्राफ से अगर मीन वैल्यू के बारे में आपको पता करना है तो इसका मीन का ग्राफ कहाँ से होगा? ये जो फर्स्ट ग्राफ है क्वांटिटी 2 का, क्वांटिटी 2 का मीन का ग्राफ कहाँ से होना? ये इसका मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसे करके इस तरफ के कुछ हो सकता है, राइट। ये जो पोजीशन है इस पोजीशन से होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, इस पोजीशन से होना चाहिए, राइट। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ही होगा, मान लीजिए इसका वैल्यू को कैलकुलेट करके एक वैल्यू निकल के आएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये सारी चीजों को सम करके अगर 5 से डिवाइड करोगे, अब देखना मीन वैल्यू इधर से कुछ एक स्ट्रेट लाइन है, विच इज वेरी नियर टू क्वांटिटी। क्वांटिटी 1 का भी अगर मीन वैल्यू निकालते हो, कि जो बताया आपने थर्ड पॉइंट, एग्जैक्टली थर्ड पॉइंट से ड्रॉ करना ही बहुत साइन, तो अगर मान लीजिए आप इसका भी वैल्यू निकालते हो मीन वैल्यू, जो क्वांटिटी 1 है उसका भी देखिए मीन वैल्यू का ग्राफ उसके मिडिल से ही जाएगा, ये इसका मिडिल है और ये इसका भी मिडिल, दोनों का ही मिडिल, तो मीन वैल्यू का ग्राफ दोनों का ही नियरली इक्वल। उसके बाद स्टेटमेंट बी कहाँ पे गया? बी बी अब आप कन्विंस करो, अब भी ऑप्शन बी पहले बताइए। Variation does not depend on increase or decrease. Variation depends on variation. Variation does not depend on increase or decrease. Variations means कितना increase कितना decrease. कंसेप्ट को सही कीजिए, ठीक है ना भाविका? यू शुड नॉट थिंक अबाउट घर बढ़ रही है घट रही है, ऐसे करके सोचना नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है कितना घटा कितना बढ़ा। नहीं, इट्स नॉट अबाउट फाइनल पॉइंट, टोटल वेरिएशन अगर सोचो, ठीक है। नॉर्मली भी अगर सोचोगे आप, देखो नॉर्मली इसका वेरिएशन बहुत ही ज्यादा हुआ है, ठीक है। द वेरिएशन इन टू क्वांटिटीज आर नियरली इक्वल, और इसका जो वेरिएशन है ये बहुत ही कम हुआ है थ्रू आउट द ग्राफ। अगर आप देखोगे नेचर, इसका वेरिएशन ज्यादा नहीं हुआ है, वेरिएशन मतलब स्कैटर्ड, कितना स्कैटर्ड है वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यूज देखिए, ये इसका बहुत करीब है, इसका करीब है, इसका करीब है, मतलब इसका वेरिएशन ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है ना। और भाभी का ये सेकेंड वाला जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हुआ है, यहाँ से लेकर वेरी करते करते हर एक पॉइंट्स के बीच में वेरिएशन बहुत ज्यादा, ठीक है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ऑप्शन तो पहला, अगर 3 नंबर ऑप्शन के बारे में इतना कंफर्म हो तो सेकंड ऑप्शन भी तो आपको समझ, तो ये सही नहीं होगा ना। हाँ, बी क्यों नहीं होगा वो भी बताना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी 1 वेरीज लेस ओवर द गिवन पीरियड एज कंपेयर टू क्वांटिटी 2, आपने ये सही क्यों बताया? क्योंकि आपने देखा इसमें वेरिएशंस कम है, इसमें वेरिएशन ज्यादा है। अगर सी करेक्ट होता है बी कभी करेक्ट नहीं हो पाएगा, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आया? यस भविका? तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? वेरी वेरी गुड। तो देखो सी जो है, क्वांटिटी 1 वेरीज लेस ओवर द गिवन पीरियड एज कंपेयर टू क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 का वैरी बहुत हुआ है,
क्वांटिटी वन का वेरी कम हुआ है ना। तो ए एंड सी आर ट्रू, ओनली ए इज ट्रू नॉट करेक्ट, क्योंकि ए के साथ सी भी करेक्ट है। ओनली बी इज ट्रू कभी करेक्ट नहीं है। ए एंड बी आर ट्रू कभी करेक्ट नहीं है, क्योंकि बी से एनीवे मीन वैल्यू एक। हाँ, एक का वेरिएशन कौन बताया? अनुश्री। अनुश्री ने बताया सर एक का वेरिएशन ज्यादा है। अनुश्री कहाँ से? अनुश्री आप वो बता रहे हो, उसमें मैथ्स को बाउंडेड बाउंडेड वेरिएशन बताते हैं, वो अलग चीज है। वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएशन ऑफ डेटा। अगर ज्यादा विराट कोहली जो स्कोर करता है, वो अगर 0 रन भी करेगा, 150 भी करेगा, तो उसका रेंज देखो और वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। और मतलब नॉट ओनली रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका जो वैल्यूज है उसके ऊपर भी डिपेंड। और वेरिएशंस अगर कोई आदमी 50 से लेकर 60 तक करता है, उसके अंदर ही सारे वैल्यूज है, तो वेरिएशंस बहुत कम है। ये स्टैट्स का नॉर्मल आइडिया है। चलिए, आई होप यू गॉट इट। लेट अस सी, इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। क्या होगा? The graph below shows the rainfall and temperature at a place over 1 week. Which of the week? हर एक क्वेश्चन CSI नेट, ये 2020 में आया होगा। हर एक क्वेश्चन CSI नेट, ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चंस कर लिया मतलब ऐसा ही टाइप का आएगा। आप देख सकते हो, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम अ ग्राफ, ग्राफिकल पिक्चर को एनालिसिस करके वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट सम एवरी सिंगल पॉसिबल, एवरी सिंगल क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का अगर कोई नाम दिया जाए, सोच सकते हो, तो ग्राफिकल एनालिसिस। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ सिचुएशन से क्वेश्चंस आएगा, और वो आपको ग्राफ को समझकर करना। ह्यूमिड के बारे में कौन बताएगा? ह्यूमिड इज व्हाट? अभी ने बताया हर ही मॉइस्चर कंटेंट इंडिया। सिंपल सा बात है, मोर टेम्परेचर लेस रेनफॉल, वाटर वेपर्स इन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, रूनी ने बताया। तो देखिए, तीनों का बात को कंपेयर करके अगर सिंपल सा बात बताओगे, अगर एयर में वेपर ज्यादा होगा तो सिंपल सा बात है ह्यूमिड का। सिंपल बात है स्टूडेंट, वेपर अगर एयर में ज्यादा होगा, वाटर वेपर, तो ह्यूमिड ज्यादा। वाटर वेपर कब ज्यादा होगा, ऐसे करके सोच। ह्यूमिड ज्यादा होगा, मोस्ट ह्यूमिड होगा अगर वाटर वेपर ज्यादा होगा। वाटर वेपर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सोच। आंसर क्या होगा वो चाहिए मुझे, एक्सप्लेनेशन का कोई भी जरूरत नहीं है अभी। पहले मुझे आंसर बताइए, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन। अनुष्का ने बताया मंडे, हरमन ने बताया, हरमनप्रीत कौर ने बताया सैटरडे। सारा ने बताया सैटरडे। स्टूडेंट देख सकते हो, यहाँ पे दोनों लाइन ग्राफ्स है। जो क्रॉस क्रॉस करके है वो आपका टेम्परेचर है, जो रेनफॉल है वो देख सकते हो आप, सॉरी क्रॉस क्रॉस करके है वो रेनफॉल है, और जो 0 0 करके है वो टेम्परेचर है। रेनफॉल जो है वो आप देख सकते हो क्रॉस वाला रेनफॉल है। टेम्परेचर जो है आप देख सकते हो वो 0 0 वाला है।
चलिए हरमनप्रीत कौर, आप बताइए आपका आंसर क्यों सैटरडे है, व्हाई इट इज अ सैटरडे। दूसरे तरफ पल्लवी अनुश्री है जो लोग मंडे बता रहे हैं बार बार, बताइए। ये सिंपल सा बात बताया हरमन, मैं कोट अनकोट बताता हूँ कि सैटरडे को सबसे ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। क्यों? ये जो ग्राफ देखिए, ये सबसे ज्यादा रेनफॉल हुआ। अब आई वुड लाइक टू टेल द पीपल, पल्लवी अनुश्री आप लोग बता रहे हो मंडे, मतलब सबसे कम रेनफॉल हो रहा है। तो आपके लिए टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा टेम्परेचर हो उतना ज्यादा वेपर क्रिएट होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। हाँ अनुश्री बताइए। के बेसिस से कौन उसने मतलब कौन, उसने मतलब, उसने मतलब कौन, उसके ऊपर से आपने आंसर बदल, आपका तो आंसर पहले से मंडे 119 पे आपने, अच्छा मोर टेम्पर अभिजीत के बात हो, आप खुद सोचो क्या अनुश्री, समझ में आया। तो देखिए रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर ज्यादा होने से ऐसा नहीं, अगर आपके पास एक, मान लीजिए एक बॉटल के ऊपर जो नीब होता है, जो पर्टिकुलर कैप होता है, एक कैप वाटर है आपके पास, टेम्परेचर सारे दे दो आप, पूरा वाटर को वेपराइज कर दो, वाटर तो उतना ही रहेगा। अब मान लीजिए आपके पास एक समुंदर है, हर एक पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर एरिया से वेपर क्रिएट हो रहा है। तो देखो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पहले तो रेनफॉल अगर मैक्सिमम है तो वाटर ज्यादा आ जाए, उसके बाद टेम्परेचर भी अच्छा बहुत है तो वाटर वेपराइज भी अच्छा करेगा। तो देखो इस पॉइंट पे रेनफॉल मैक्सिमम है, चाहे टेम्परेचर हाईएस्ट हो ना हो, लेकिन वो बहुत अमाउंट का वेपर क्रिएट करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर जहां पे है वहां पे वाटर बहुत ही कम है। एज कंपेरिजन टू मंडे एंड सैटरडे, आप देख सकते हो सैटरडे इज द विनर, मतलब सैटरडे में ह्यूमिड ज्यादा होगा। बहुत अच्छा, सारे स्टूडेंट ने करीबन सही आंसर निकाल के दिया। वेरी वेरी गुड पल्लवी, यू गॉट इट। So thank you so much students, those are the questions I have tried to tell you something to which I hope you have learned a little bit of things which will help you at the time of examination. So this was all about data interpretation, data graph interpretation, जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए 2 दिन हम ऊपर क्लास किया, बातें किया। देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स में एक नया चीज आ जाएगा, क्लॉक एंड प्रॉब्लम के साथ, जैसे कैलेंडर एंड क्लॉक एंड, दोज आर वेरी यूनिक टू थिंग्स, केस एनालिटिक्स गेट में नहीं रहता है ऐसा। तो आप देख सकते हो कि ये चीज क्लॉक एंड प्रॉब्लम्स भी आपको सीखने मिलेगा, उसके साथ परमुटेशन प्रोबेबिलिटी बहुत ही लूसिड वे पे आपको बताऊंगा। उसके बाद जियोमेट्री का कुछ चीजें हैं, आई एम नॉट गोना गेट इनटू डीप ऑफ दैट थिंग्स, क्योंकि वो जो है एक पूरा 7 8 9 10 वाला जियोमेट्री का पूरा पोर्शन है, कि अगर एक क्वेश्चन आता है करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो हर एक चीज करना है ऐसा नहीं है स्टूडेंट। और उसके बाद जो चीज है आप देख सकते हैं, वही है मैथ का जियोमेट्री वाला कुछ कोर्स है, वो ज्यादा नहीं करेंगे, हम देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो उसको ज्यादा बात करेंगे। और बेसिक साइंस है वो तो सारी चीज आपको पता ही होता है बेसिक। अब बेसिक साइंस का कोई सिलेबस नहीं होता, क्या पढ़ाया जाए, राइट। अब बुक में कुछ मेंशंस तो होता है, बट दोज आर नॉट द ऑल। बेसिक साइंस इज बेसिक साइंस। आज का जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया वो भी बेसिक साइंस, राइट। तो बेसिक साइंस से क्वेश्चंस आता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स भी आता है, बेसिक साइंस नॉर्मल होता है। वो बेसिक साइंस अगर आपको पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो अटेंड नहीं, सिंपल बात। क्योंकि बेसिक साइंस पता करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, कि हर एक चीज के बारे में आप पढ़ाई करो, राइट। So anyway student, that's how we can create a proper preparation through which you can crack। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो 12 क्वेश्चंस यू क्रैक आउट ऑफ 50। ऑल क्वेश्चंस यू डोंट नीड, इफ यू हैव ओन कैपेबिलिटी, जो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, आप 15 आउट ऑफ 15 भी निकाल सकते हो। मेरा बहुत दोस्त है थ्रू आउट ऑल द सब्जेक्ट, दे हैव क्रैक्ड ऑल द 15 क्वेश्चन टू गेट अ रैंक बिलो 5 2 3 ऐसा रैंकर्स जो है। मैंने देखा 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करेक्ट था।
आपको करना ही है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या आपका मार्क्स आ रहा है, उससे ही आपको पता चलेगा। तो गिव मॉक टेस्ट, मतलब जहाँ पे ऑल क्वेश्चंस रहता है, तब भी आपको खुद का एबिलिटी पता चलेगा। चैप्टर वाइज करोगे, जो सीख रहे हो वही करोगे, पता नहीं चलेगा आपके अंदर कितना काबिलियत है, कितना मार्क्स लाने का, ठीक है। तो मेजर योर लिमिट, उससे 1-2 मार्क्स मेहनत करके ज़्यादा लेके आओ, तो और क्या चाहिए। दैट्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। Let's meet again on Monday and have a great, what to say, great consecutive days, like great weekend. Diwali is there. If you are gonna, I'm quite sure you are gonna enjoy this week. So happy Diwali to all of you. Have a great weekend and great time. चलिए, goodbye and take care, students. Okay. Now, if you have anything, you can tell me. Questions, queries. इस संडे को टेस्ट नहीं होगा, किस का नहीं है बताइए। मंडे मंडे मंडे, हाँ, मंडे ट्यूसडे फिर से होगा, नेक्स्ट वीक पे खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। दिस इज द 15th लेक्चर, बाय 21 लेक्चर्स एवरीथिंग विल गो। चलिए स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर। हैप्पी दिवाली गोल्ड, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए, हैप्पी दिवाली बिनाया, हैप्पी दिवाली। यस, हैप्पी दिवाली प्रियंका, तनया, अच्छे से एंजॉय करना। हैव ए ग्रेट वीक।